So now we have black body radiation. If the temperature of the black body becomes double, the intensity of the radiation will become. So intensity of radiation matlab energy. And we know that from Boltzmann, Stephen Boltzmann law, which says that energy is directly proportional to T power 4. So हमारे पास temperature double हो गई है. So अगर हम 2 की power ले लें, so energy will increase 16 times. Option D. According to Lenz's displacement law, lambda max T is equal to 2.98. Now if the temperature becomes, so this is the Lenz's displacement constant, and the product of temperature and wavelength will be always constant. सही है. So ये हमेशा constant रहेगी और इसकी वैल्यू वही रहेगी 2.9898 milliwatt to the power minus 3. As the temperature of the black body is increased, the wavelength of the maximum intensity radiation shift towards shorter wavelength. हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि wavelength is inversely proportional to temperature. अगर हमारे पास temperature increase हो रही है, so wavelength हमारे पास क्या होगी, shorter हो जाएगी. सही है. According to the Lenz's displacement law, x max T is equal to 2.98. The temperature of the core of the sun is, so the Lenz's displacement law can't find the temperature in the core. वो सिर्फ सरफेस के लिए है. Arrange the following in order of their decreasing temperature. So हमारे पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगी, स्टार्स में होगी. सन इज आल्सो स्टार्स, और सन दूसरे नंबर पे और फिर मून आएगा. सो ऑप्शन सी, स्टार में ज़्यादा होगी, फिर सन में उससे कम होगी और मून में इन दोनों की निस्बत बहुत कम होगी. When displacement is applicable to measure the temperature, surface temperature. Option D. Now the photoelectric effect. Photoelectric effect is simply the interaction of light with matter. जब लाइट रेडिएशन फॉल करती है मटेरियल पे और वो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है. सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. द एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज विल बी. सो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है HF, which is H is a Planck constant, and Planck constant की वैल्यू है 6.6 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 34. ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज. सो 10 हमारे पास आ गई. तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या गई, 6.6 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 33. ना अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो वी डिवाइड 1.6 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 19. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल के बराबर है, 1.6 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 19. सो इसको अगर हम इस पे डिवाइड करें, सो द फाइनल आंसर विल बी 4.125 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट एनर्जी इन जूल वुड अ फोटोन ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ इज 3 मिलीवाट टेन टू पावर माइनस 4 एंड प्लांक कांस्टेंट है. सो हमारे पास वही एनर्जी फार्मूला है कि इज इक्वल टू HF, एंड फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके बराबर है, C बाई लेमडा. नाउ हमारे पास वेवलेंथ है Planck constant 6.6 multiplied 10 to the power minus 34. C is 3 multiplied 10 to the power 8. और हमारे पास क्या थी, the wavelength was 3 multiplied 10 to the power minus 4, और sin t के लिए हम minus 2 लिख लेंगे. So now if we solve this equation, so the final answer will be option C, 6.6 multiplied 10 to the power minus 20. Measurement of radiation from an astronomical source showed a decrease in the wavelength at which the greatest energy was being received. This would mean that the source had. So हमारे पास अगर wavelength shorter हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि temperature increase हो गई. From when displacement allow we know that temperature is wavelength is inversely proportional to temperature. अगर हमारे पास wavelength कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि temperature increase हो गई. The number of photoelectron emitted per second from the metal surface depend upon. So ये बात याद रखिए कि number of electron या करंट ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे. सो द करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का मतलब क्या है, करंट. सो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इसको हम करंट लिख लेते हैं और इंटेंसिटी. और हमारे पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, या हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. सो नाउ इज द intensity. The scientist who was awarded Nobel Prize for explaining photoelectric effect. So photoelectric effect को Einstein ने explain किया था. The maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends upon. तो आपको मैंने बताया कि kinetic energy या stopping potential depend upon the frequency of incident light. So as the frequency of the incident radiation falling on the photo emissive plate is double, the kinetic energy of the photoelectron is. अच्छा, अगर frequency double हो जाए, so kinetic energy में क्या फर्क पड़ेगा. So kinetic energy is directly proportional to the frequency. का frequency double हो गई, so obviously the temperature will always the kinetic energy will be also double. A photon is a charged particle. A photon is a charged particle and electron positron a quantum of electromagnetic radiation. So light क्या है, light is electromagnetic radiation और photon is a packet of energy. Packet of energy को हम क्या कहते हैं, quantum. So a quantum of electromagnetic radiation. Sodium and copper have work function 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively. Then the ratio of the wavelength is near is 2. So work function किसके बराबर है, is basically the work function is energy, so HF के बराबर है. Now frequency की जगह हम अगर wavelength को ऐड कर ले, so C by lambda आ जाएगा. Now अगर हम इसको देख लें, so work function is direct inversely proportional to lambda. सही है. Now अगर हम wavelength का इक्वेशन निकालें इसके लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है सोडियम और कॉपर. सो सोडियम की वेवलेंथ और कॉपर की वेवलेंथ की अगर हम रेशो ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर
divided by work function of sodium. Now the work function of copper is 4.5 and the work function of sodium is 2.3. So 4.5 divided by 2.3, so which is approximately 2 के बराबर है या 2:1. This is option C. Now, next is according to Einstein photoelectric electric equation, the plot of the kinetic energy of emitted photon electron from metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line whose slope depend upon the nature of material. Next is the work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photo electrons emission from this substances is approximately. So वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है, कट ऑफ एनर्जी है या थ्रेशोल्ड एनर्जी हम इसको भी कह सकते हैं. तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वर्क फंक्शन इज एनर्जी और ये एच एफ नॉट. सो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो वर्क फंक्शन बेसिकली बराबर है एच एफ विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में जो अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेंथ में लिखिए, so this wavelength is known as threshold wavelength. So this is the minimum frequency required for a light to emit an electron from the material. See, so minimum frequency is inversely proportional to the wavelength. So अगर ये frequency सबसे कम है, so ये wavelength सबसे ज़्यादा होगी. So जैसा कि MCQs में given है, the longest wavelength. So ये सबसे ज़्यादा longest wavelength होगी. Now हमने find क्या करना है, इस longest wavelength को find करना है, which is the threshold wavelength. या तो इसको find करने के लिए हम क्या करेंगे, simply वर्क फंक्शन को यहाँ ले आएंगे और ये वहाँ चला जाएगा. तो इसका फार्मूला बन जाएगा एच सी डिवाइड बाई वर्क फंक्शन. ना हमारे पास प्लांक कांस्टेंट 6.6 मल्टीप्लाई टेन टू पावर -34, सी हमारे पास बराबर है 3 मल्टीप्लाई टेन टू पावर 8 के, और वर्क फंक्शन हमें गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई टेन टू पावर -90. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास द फाइनल आंसर विल बी 310 नैनोमीटर. द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से threshold wavelength को मैंने आपको बताया कि it will be the greatest wavelength for silver is lambda naught. The energy of the electron ejected from the surface of silver by an incident wavelength will be. So अगर हम इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी लाइट को इंसिडेंट करेंगे जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो. सही है, तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एजेक्ट कर पाएगी. नाउ अब हमारे पास गिवन है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, सो the answer is like this के we know that जब हमारे पास एक रेडिएशन आती है, फोटॉन के पास अपनी एनर्जी होती है. सही है, लेट्स से दिस इज अ सरफेस. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है. नाउ ये फोटॉन आती है और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, लेकिन इसको इजेक्ट करने के लिए इसे एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत है. सो वो एनर्जी क्या है, वो हमारे पास वर्क फंक्शन है. सो फॉर एग्जांपल अगर इस फोटॉन के पास 10 जूल है और इसकी वर्क फंक्शन क्या है 5 जूल है. सो 5 जूल एनर्जी तो उसको निकालने के लिए ख़त्म हो गई. नाउ रह गई 5 जूल ऑफ एनर्जी फोटॉन के पास. सो ये एनर्जी क्या करेगी, ये एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन को देगी और ये इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी इसको यूज़ करेगी. सो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. समझ गए अब. सो अब हमने क्या करना है, अब हमें ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी को इस साइड पे ले आते हैं और वर्क फंक्शन को यहाँ ले आते हैं. सो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस वर्क फंक्शन. नाउ अब देख लें कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है, एस एच एफ, एंड वर्क फंक्शन किसके बराबर है एच एफ नॉट, विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई एच एफ की माइनस एच एफ नॉट की. नाउ अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से रिप्लेस करें तो ये हमारे पास बन जाएगी एच सी लेमडा नॉट. सो ये लेमडा नॉट है, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो सिंपल लेमडा है दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ. सही है. ना अब हम इसका क्या करेंगे, हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे. सो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी लेमडा एंड लेमडा नॉट. सो अगर हम इन दोनों लेमडा लेमडा नॉट को सिंपली मैथमेटिक्स से इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास लेमडा नॉट रह जाएगी और ये एच सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो एच सी लेमडा नॉट और यहाँ पर सिंपली लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगी. नाउ अब हमारे पास क्या है एच सी कम है दोनों में. सो एच सी को हम ले लेंगे और लेमडा नॉट माइनस लेमडा आ जाएगा और नीचे क्या रहता है लेमडा लेमडा नॉट. सो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड वो क्या है एच सी इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा नॉट लेमडा. When blue light is made an incident on metallic surface, then electron emitted by it, but electron are not emitted by green light. By which of the following radiation the photoelectric electron emission will be possible? And now हमारे पास एक फार्मूला है which is वेब गोयर. आप इसको जो भी कह लें
This is the formula of colors. V for violet, indigo, blue, green, orange, yellow and red. सही है. So सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट की है. और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है. सो इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, सही है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. सो अगर एक लाइट, अगर ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कर रही है, और ग्रीन लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन की क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है ब्लू से. सो ब्लू नहीं कर रही, ग्रीन नहीं कर रही और ब्लू कर रही है. अब हमारे पास हमें ऐसी लाइट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा हो. सो हमारे पास कौन सी बचती है? दो कलर्स, एक तो वायलेट, एक इंडिगो. और ऑप्शन में गिवन है येलो और रेड. सो येलो और रेड की फ्रीक्वेंसी तो ग्रीन से भी कम है. सो वो तो बिल्कुल, अगर ग्रीन नहीं कर सकता तो वो दोनों तो पहले ही नहीं कर सकती, सही है. सो नाउ हमारे पास बचता है एक वायलेट. सो वायलेट इज द फाइनल आंसर. वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन मेटल 6.4 × 10⁻15 हर्ट्ज. डेड लाइट मस्ट हैव रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. सो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है. ये एमसीक्यू सही है नहीं है. नेक्स्ट करते हैं. वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन सरफेस इज 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हमारे पास वर्क फंक्शन है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट मस्ट. सो हमने क्या फाइंड करनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी. सो फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ नॉट वर्क फंक्शन, या ई क्या है हमारे पास? वर्क फंक्शन है. सो हम सिर्फ यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे और वर्क फंक्शन के प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड कर लेंगे. हमारे पास 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने से ये एनर्जी. सो इस एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19 से डिवाइड कर लेंगे. सो ये जूल में बच जाएगा और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट इज द वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन सरफेस इज 13.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी. सो वही सेम है, जस्ट यहाँ पर 3.26 जगह 13.26 वही मैकेनिज्म है, वही कैलकुलेशन है. 13.26 को हम 1.6 पे डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसको प्लैंक कांस्टेंट पे डिवाइड कर लेंगे. व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज गिफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, then the value of stopping potential is 4 volt. If it is kept at a distance of 4 meter, then the stopping potential is. So मैंने आपको बताया कि the stopping potential and the kinetic energy only depend upon the frequency of light. अब एनर्जी और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, और क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जस्ट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम लाइट को दूर करें या लाइट को नज़दीक ले आए, सो फ्रीक्वेंसी तो लाइट की वही रहेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही 4 वोल्ट रहेगा. On making ultraviolet light of energy 6.2 electron volt incident on aluminium surface, faster photoelectrons are emitted. If the work function of aluminium surface is 4.2 electron, then the kinetic energy of these faster electron will be. So हमारे पास फोटॉन की टोटल एनर्जी क्या है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमारे पास वर्क फंक्शन क्या है इसका? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या थी? क्या वर्क फंक्शन माइनस काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं तो हम टोटल एनर्जी से वर्क फंक्शन को माइनस कर लेंगे. सो 6.2 से हम 4.2 माइनस कर लेंगे विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 3 माइनस 19 मल्टीप्लाई 2 विल बी 3.2 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19 जूल. द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन corresponding to maximum wavelength of visible light will be. सो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? मैंने आपको बताया, वेगोयर आपको फॉर्मूला दिया था. सो हमारे पास अगर हम वॉयलेट से रेड कलर पे जाए, सो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होती है. और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट की. सो हम रेड लाइट की वेवलेंथ ले लेंगे और हमारे पास फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू एच, और फ्रीक्वेंसी की जगह हम डायरेक्ट सीलियम डाल लिखेंगे. सही है. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आ गई और प्लैंक कांस्टेंट भी हमें पता है और सी स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है. सो वी विल कैलकुलेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. The work function of a metal is 2.5 electron. When photon of some proper energy is made incident on it, then an electron of 1.5 electron volt is emitted. The energy of photon will be. So 2.5 work function है और 1.5 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है. So हमारे पास टोटल एनर्जी क्या थी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. So 2.5 plus 1.5 will be 4 electron volt. Total energy इसकी सम के बराबर आ जाएगी. When light of 10 electron volt falls on metal surface, work function is at divided by 10 19 joule. The maximum kinetic energy of emitted electron will be. So हम क्या कर लेंगे? हमारे पास लाइट की टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारे पास आंसर गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो उससे हम वर्क फंक्शन की एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19 पे डिवाइड कर लेंगे. सो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी आंसर ऑफ वर्क फंक्शन. अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करते हैं? टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. सो जो हमारे पास आंसर आ गई उसको हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस करेंगे. एंड आई गेस द आंसर इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the threshold wavelength of lithium is 8,000 angstrom. When the light of 9,000 angstrom is made incident on it, then that photoelectron will be. So हमारे पास देखो threshold wavelength मैंने आपको बताया कि
आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहते हैं, सो आप वेवलिन को थ्रेशोल्ड वेवलिन से कम लाएंगे। सो लेकिन यहाँ पर वेवलिन देखो इंक्रीज हो गई 8000 से 9000, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वेवलिन थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, सो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। The photoelectric current at a distance of R1 and R2 of light source from photoelectric cell are I1 and I2 respectively. The value of I1 divided by I2 will be. So now the current depend upon intensity of light. So यहाँ पर current directly डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सो करंट इनडायरेक्टली डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और कैसे करेगी? सो इट विल बी, अब हमारे पास वी नो दैट करंट इज इंटेंसिटी किसके बराबर है? एनर्जी पर एरिया तो टाइम के बराबर है, सही है। दिस इज द यूनिट इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। नाउ अब हम देख लीजिए इंटेंसिटी और एरिया का इनवर्सली रिलेशन है, सही है। और हम एरिया को बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, वी नो दैट एरिया इज बाई आर स्क्वायर, सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। नाउ इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर के, लेकिन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी, सो करंट भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गई, सही है। नाउ अब अगर हमारे पास करंट का रेशो है 1:1 डिवाइड बाई 1:2, तो हमारे पास रेडियस का रेशो क्या आएगा? R2 डिवाइड बाई R1 होल स्क्वायर। सो R2 डिवाइड बाई R1 होल स्क्वायर, ऑप्शन डी, क्योंकि करंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, सो बेसिकली इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज में आई थिंक, और आइंस्टाइन ने इसको सॉल्व किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली related to अच्छा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल व्हिच स्टॉप द करंट। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरह है कि हम इसको इस तरह पोटेंशियल दे देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट ही ना हो, सो वो करंट को खत्म करने के लिए होती है। Next is the number of ejected electron increases with the increase of frequency of incident light, intensity of incident light. So current is directly proportional to intensity, and the kinetic energy or stopping potential उसकी अगर रिलेशन पूछी तो फिर वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड per second from the metal surface depends on obviously intensity of light. The increase in intensity of incident radiation means the number of photoelectron emitted is increases. If the frequency of incident light falling on a photo emissive plate is double, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इफ इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम टू 4000, देन सो हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। सो ये वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, सो इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अच्छा, सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी आल्सो इंक्रीजेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इफ द इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज डबल, सो अगर इंटेंसिटी डबल हो गई, सो हमारे पास करंट बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज एंड द करंट विल आल्सो बी इंक्रीज टू टाइम। दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक